Hello dear students, welcome back to our channel. So before beginning with our today's topic, let me remind you once again that if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button and do not forget to click on the bell icon. Thank you. Let's start with our today's topic. So let's begin with our today's topic. Our today's topic is male reproductive system. In our earlier lecture, we had discussed in detail about asexual reproduction and about the introduction of the sexual reproduction and human reproduction in detail. हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है. ओके, फर्स्ट थिंग, आई एम यूजिंग दिस प्रोजेक्टर बिकॉज देर आर वेरी इंपॉर्टेंट transverse sections used in this concept. Okay, diagrams of transverse sections has been used which can be depicted very well with the help of the projector. Okay, so let's make positive use of the technology. Okay, so let's begin with the topic. Okay, what does the introduction of the human reproductive system says? That it consists of primary male organ. Human reproductive system में क्या क्या होता है? It consists of primary male organ, that is gonad. ओके, याद रखो ये जो वर्ड गोनैड है, गोनैड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल. चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गोनैड्स. क्या बोलते हैं? गोनैड्स. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा? गोनैड्स के बारे में बात होगी, जैसे कि टेस्टिस. मेल गोनैड्स कौन से हैं? टेस्टिस. सॉरी, सो मेल गोनैड्स आर टेस्टिस. द एक्सेसरी डक्ट्स. Accessory ducts means what? The one which help the main primary organ. Okay, तो आप accessory ducts को secondary organ भी बोल सकते हो. And glands which form internal and external genitalia. मतलब male primary male organ, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स मिला के ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. इसमें से कोई एक भी चीज अगर ना हो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट माना जाता है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन विद द डायग्राम फर्स्ट. नाउ एज यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम आपको लेबलिंग्स पूछी गई हैं. ठीक है, ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा. एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज वेरी कॉमन डायग्राम. दे हैव ऑलरेडी सीन इट इन देयर अर्लियर सेक्शंस ऑफ स्कूलिंग. So let's try to label it together. Okay, all right. What does our first label indicate? What is it? I will give you the answers so that it will save your time. What is the first label? It is seminal vesicle. What does the first label indicate? Seminal vesicle. What does the second label indicate? Yes, it is nothing but ejaculatory duct. What is the second label? This one. It is the ejaculatory duct. Okay, what does our third label indicate? It is the male's Copper's gland. Okay, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉपर ग्लैंड है ये. इसका ही दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, ये एक ही है. ठीक है, ऑल दीज आर द सेम थिंग. दिस थर्ड लेबलिंग इज नथिंग बट कॉपर्स ग्लैंड. अनदर नेम फॉर कॉपर्स ग्लैंड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. व्हाट डज योर फोर्थ लेबल इंडिकेट? व्हाट इज दिस? द फोर्थ लेबल, आई विल राइट इट ओवर हियर इटसेल्फ. ओके, इट इज नथिंग बट यूरेथ्रा. रुको, यहाँ लाइट का शायद प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ रहा है. वेट, what does this fourth label indicate? Urethra. Okay, fourth one. What does fifth label indicate? Yes, it is nothing but epididymis. Please make sure that you write all the spellings correctly. Epididymis. What does sixth label indicate? This is fifth one. Okay, what does sixth label indicate? It is testis. Okay, it is testis. हम एक ही testis की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने singular form लिखा है. What does seventh label indicate? Seventh label indicates urinary bladder. What does eighth label indicate?
prostate gland. Okay, what does 9th label indicate? Vas deferens. And what does 10th label indicate? I'll write it on this arrow itself, glans penis. Okay, all right. So these are your labelings. Make sure that you label each and everything correctly. अगर आपको इसमें से किसी भी लेबलिंग में कंफ्यूजन हो कि कौन सा लेबल किसका है तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क. ओके, सो दिस इज व्हाट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समवॉट लुक्स लाइक. प्लीज हैव अ लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली. ओके, दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, बहुत बार ये डायग्राम एग्जाम में भी आता है, सो मेक श्योर दैट यू label everything correctly and make sure that you write all the spellings correctly. Okay, so now let's start with its description. डायग्राम हमने देख लिया, इसका डिस्क्रिप्शन अब देखेंगे. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट, ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस. Okay, so let's begin with testes, the first primary male reproductive organ. What does it say? A pair of testes, mesodermal in origin, are formed in the lower abdominal cavity. यहाँ पर अब दो important word बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. दो वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं. सबसे पहली बात तो टेस्टिस कैसे होते हैं? सिंगल टेस्टिस नहीं होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अभी आपने ऊपर के डायग्राम में देखा था कि दो टेस्टिस प्रेजेंट थे, वन ऑन लेफ्ट एंड वन ऑन राइट. ओके, पेनिस के आजू बाजू में देर आर टू टेस्टिस प्रेजेंट इन नंबर. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस which are mesodermal in origin. Now this word is very important. Mesodermal मतलब क्या होता है? मीसोडर्म का मतलब हमको पता है कि मिडल लेयर, बट मिडल लेयर ऑफ व्हाट? अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट छोटे से तरीके से बताने जा रही हूँ. मतलब क्विकली आई विल टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हेन योर मेल स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर दे फर्टिलाइज टू फॉर्म अ जाइगोट. ओके, दिस इज योर जाइगोट. और जब ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, क्या बोला मैंने? जब ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है तो इसके अंदर अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती है. हमारे एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स फॉर्म होती है. एक होती है आउटर लेयर विच इज़ नोन एज एक्टोडर्म, एक होती है मिडल लेयर विच इज़ नोन एज एंडोडर्म, सॉरी मेसोडर्म, इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म, और जो बीच में जो बचा रहता है, बीच के जो सेल्स होते हैं, ये मिडल सेल्स, दे आर नोन एज मीसोडर्म. वापस बोलती हूँ, मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं, मेल फीमेल सेल्स जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है. जाइगोट फर्दर मैच्योर होकर एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स, स्टार्टिंग में 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं. सेल डिवीजन करते 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 जो स्टार्टिंग लेयर्स बनती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म और सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म. दोनों लेयर्स के बीच की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मीसोडर्म, मिडल लेयर. और इसके बाद, मतलब इस स्टेज के बाद, जब हमारा एम्ब्रियो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, ये 3 लेयर्स जब उसमें बन जाती हैं तो अब ये सेल्स डिफ्रेंसिएशन करने लग जाते हैं. क्या करने लग जाते हैं? डिफ्रेंसिएशन. और डिफ्रेंसिएशन मतलब हमने क्या देखा है? डिसाइडिंग योर डेस्टिनी. डिफ्रेंसिएशन का मतलब हमने क्या पढ़ा है सेल डिवीजन में? कि सेल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डेस्टिनी डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर सेल ब्रेन टिश्यू का पार्ट बनेगा, या किडनी का पार्ट बनेगा, या स्किन का पार्ट बनेगा, या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट बनेगा, या हार्ट सेल्स बनेंगे आगे जाके. क्योंकि है इतना सा एम्ब्रियो, लेकिन यही एम्ब्रियो बड़ा होकर फीटस बनता है, फिर फीटस से ये चाइल्ड बनता है वुम्ब के अंदर. तो मतलब एक सेल से ही इतना बड़ा बेबी बन रहा है. तो ये इतना बड़ा फीटस कैसे बन रहा है? क्योंकि सेल डिवाइड हो रहे हैं. और जब सेल डिवाइड हो रहे हैं तो एक ऑर्गन तैयार हो रहा है. ओके, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से सेल से लेयर, लेयर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरी बॉडी तैयार हो रही है. तो ये सब किस प्रोसेस की वजह से होता है? डिफ्रेंसिएशन के वजह से. डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है? व्हेन द सेल डिसाइड इट्स डेस्टिनी. ओके, तो अब इसमें से एक्टोडर्म अलग पार्ट बन जाते हैं, मीसोडर्म का अलग रोल होता है, और एंडोडर्म का अलग रोल होता है. तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि अब जब जब ये 3 वर्ड्स आएंगे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, तो इसका मतलब हम कौन से लेयर्स की बात कर रहे हैं? डर्म मतलब लेयर,
तो हम कौन से लेयर्स की बात कर रहे हैं? हम एम्ब्रियो के लेयर्स की बात कर रहे हैं। मतलब जब हमारा एम्ब्रियो बना होगा, एकदम स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि टेस्टिस कौन से सेल्स से बने हैं? दे आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब जो सेल्स यहाँ के मीसोडर्म में होंगे वही सेल्स से टेस्टिस बने हैं। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। इफ you have any doubt then please make sure to ask it in the comment section. So a pair of testis which is mesodermal in origin, मतलब जो एम्ब्रियो का मीसोडर्म का सेल होगा उसी सेल से टेस्टिस बना है। They are formed in the lower abdominal cavity. जब हमारा फीटस बहुत छोटा होता है, ओके, चाइल्ड बर्थ होने से पहले ही फीटस जब वुम्ब के अंदर होता है, तब क्या होता है कि ये टेस्टिस जो होते हैं, लेट मी शो यू द डायग्राम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस कहाँ होते हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पेट के अंदर, ओके, आपके पेल्विस के अंदर की तरफ होते हैं। दे आर इन द एब्डोमिनल कैविटी। और जब चाइल्ड पूरी तरीके से मैच्योर होने वाला होता है तो ये टेस्टिस एक कैनाल के थ्रू, मतलब यहाँ पर समझो ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, सपोज दिस इज द स्टमक ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ फीटस, ओके, दिस इज द बेली। तो यहाँ पर ये टेस्टिस होंगे, यहाँ कहीं पर ये टेस्टिस डेवलप हो रहे होंगे। और जब वो फीटस डेवलप होता है, मतलब नाउ द चाइल्ड इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर इनसाइड द वुमन, इनसाइड द वुम्ब, ओके, तो ये टेस्टिस क्या होंगे? ये टेस्टिस इस कैनाल के थ्रू, कैनाल मतलब ये जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। सो इस कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस नीचे की तरफ आ जाते हैं और ऐसे आपके थाइस के बीच में, मेल्स के थाइस के बीच में ये दो टेस्टिस दे हैंग ओवर देयर, वो वहां पर मतलब झूल रहे होते हैं। सो द टेस्टिस दे डिसेंड, डिसेंड मतलब बाहर की तरफ आ जाना, नीचे की तरफ आ जाना। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सम सेंस। ओके, ऑल राइट। सो there are a pair of testes present and they are formed in the abdominal cavity. They are located in a pouch called scrotum. जब यही टेस्टिस बाहर आ जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं लटकते हैं, वो एक पाउच के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा एक पाउच होता है, एक पतला सा स्किन होता है जो इस टेस्टिस को होल्ड करके रखता है और इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं हम इस पाउच को? स्क्रोटम। सो जब हमारे मतलब मेल्स के ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ रहे हैं तो वो बाहर आते हैं और पाउच के अंदर, एक स्किन के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ स्क्रोटम। ओके, सो दिस इज योर स्किन विच प्रोटेक्ट्स द स्क्रोटम। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये टेस्टिस कब डेवलप हो जाते हैं? जब फीटस आपका डेवलप हो रहा होता है, ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट। ओके, एंड लेटर दे डिसेंड, डिसेंड मीन्स दे कम आउट ऑफ द बॉडी, मतलब वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, थाई रीजन में आ जाते हैं। सो ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी and later they descend, descend means come out into the scrotal sac। वो जो स्किन है उसको सैक क्यों बोला है? क्योंकि गोनी जैसा है, वो अपने अंदर टेस्टिस को समा ले रहा है। सो the testis descends into the scrotal sac through a passage called inguinal canal। मैंने अभी आपको ऊपर बताया what is inguinal canal। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जहाँ से आपके टेस्टिस बाहर आने वाले हैं, जिस ओपनिंग से आपके टेस्टिस बाहर आने वाले हैं, उस ओपनिंग को इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हर एक टेस्टिस ओवल शेप में होता है, लाइक एन एग, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ओके, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाइड एंड थिक। ओके, लेट्स मूव अहेड। Okay, now we are going to discuss the histology of the testis. Okay, histology means when you cut the testis and you discuss about it in detail. Okay, so before beginning with its discussion, let me just erase this. I hope that you will remember the origin of the cells, endoderm, ectoderm and mesoderm. ठीक है? Okay, histology start करते हैं. What does the histology say? Histology देखने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, LS of testis। मतलब ये पहले आप देखो, आपका टेस्टिस ये ऐसा है, इसको अगर मैं ऐसे ही कट करूं तो ये अंदर वाला पार्ट कैसे दिखेगा? मतलब इमेजिन दिस इज योर टेस्टिस,
इस टेस्टिस को अगर ऐसे ऊपर से कट किया जाए, लेटरल सेक्शन कट किया जाए इसका, तो ये अंदर से कैसे दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस. द एलएस ऑफ द टेस्टिस लुक्स लाइक दिस. दिस इज द लेटरल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. ओके, टेस्टिस को ऐसे कट किया गया है, लेटरली कट किया गया है. दिस इज द एलएस. ओके, और जब आप इसको वो ऐसे ट्रांसवर्स कट करोगे तो ये ऊपर से कैसे दिखेगा, मतलब यहाँ से कैसे दिखेगा, वो हम आगे वाले डायग्राम में देखेंगे. सो दिस इज द एलएस ऑफ टेस्टिस. यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें आपको अभी आने वाली हैं, सारी चीज़ें मेंशन होने वाली हैं. ये आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट है. दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई. ओके, ये एपिडिडाइमिस का रीजन है, ये वाला रीजन जो हमने ऊपर देखा था. दिस इज योर एपिडिडाइमिस. तो एपिडिडाइमिस 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, मिडल बॉडी एंड टेल. सो सी, दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, head of the epididymis, middle region of the epididymis and tail of the epididymis. Then this is vas differens, वो जो ट्यूब आ रही थी, this is vasa efferentia, you will see about it. रेटोटेस्टिस भी हम देखेंगे, और ये उसके आउटर लेयर्स हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया. चलो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है ये. ओके, ऑल राइट. ओके, सो द हिस्टोलॉजी गोज लाइक दिस. The testis is externally covered. The testis is externally covered by a collagenous connective tissue layer called tunica albuginea. ये टेस्टिस है, यहाँ से एपिडिडाइमिस है. ठीक है, टेस्टिस का आउटर लेयर जो है ये एक फाइब्रस कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू से बना है. इसका लेबलिंग क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया? द ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड ईच टेस्टिस इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जंप किया है, पहले मैं ये देख लेती हूँ कि आगे हमको क्या दिया गया है, एक एक करके देखेंगे. टेस्टिस का आउटर लेयर जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, उसको क्या लेबल किया गया है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. Okay, outer to it is an incomplete peritoneal covering called tunica vaginalis. क्या बोला है हमको यहाँ पर? इसके बाहर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसके बाहर और एक लेयर है, द डॉटेड लेयर दैट आई एम मेकिंग, ये ऊपर तक जाता है. ये डॉटेड लेयर क्या है? ट्यूनिका वेजिनालिस. व्हाट इज दिस डॉटेड लेयर लेबल्ड एज? ट्यूनिका वेजिनालिस. एंड इनर टू इट इज ट्यूनिका वास्क्यूलोसा. अंदर की तरफ ट्यूनिका वास्क्यूलोसा है. दिस इनर पार्ट इज ट्यूनिका वास्क्यूलोसा. ठीक है, आउटर पार्ट इज ट्यूनिका वेजिनालिस एंड मिडल लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया. वापस बोलती हूँ, आपका टेस्टिस 3 लेयर से कवर्ड है. सी, मेल टेस्टिस इज कवर्ड, इज लेयर्ड विथ 3 लेयर्स. outermost is tunica vaginalis, then middle one is tunica albuginea, और middle one के अंदर की तरफ जो है that is tunica vasculosa या vascularis. तीनों का ही मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द रोल ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ट्यूनिका वास्क्यूलोसा. सो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या बताया है? ट्यूनिका वास्क्यूलोसा का रोल बताया है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूनिका वास्क्यूलोसा? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन एंड वास्क्यूलर लेयर. वास्क्यूलर मतलब क्या बोला है? कि जितने भी ब्लड वेसल्स होंगे, वास्क्यूलर का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है. वास्क्यूलर मीन्स वेसल्स. ओके, वी टॉक अबाउट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स व्हेन वास्क्यूलर वर्ड कम्स. ओके, सो ट्यूनिका वास्क्यूलोसा जो है, मतलब ये जो अंदर वाली लेयर जो है, दिस इनर लेयर, इसके अंदर सारे ब्लड वेसल्स होंगे. ठीक है, फिर आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मिडल लेयर. हम अंदर से बाहर आ रहे हैं. ट्यूनिका वास्क्यूलोसा में सारे वेसल्स होंगे. ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करेगा? इट डिवाइड्स ईच टेस्टिस इनटू अबाउट 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है? ये हमारे टेस्टिस की लेयर को बहुत सारे लोब्स में डिवाइड करता है. सी, ये लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज लोब्यूल्स, ये जो कर्व्स जा रहे हैं ऐसे. ओके, दीज लोब्यूल्स आर बिकॉज ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या कर रही है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरे टेस्टिस के बीच बीच में से, मतलब ये जो व्हाइट वाली लेयर है ना,
ये वाइट वाली लेयर खुद को एक्सटेंड करती है और टेस्टिस को डिवाइड कर देती है एक लोब में, फिर ये दूसरा लोब बन जाता है, ये तीसरा लोब। लोब मतलब क्या होता है? फोल्डिंग्स। ओके, सो टेस्टिस एल्बुजिनिया के वजह से क्या बन रहे हैं? लोब्यूल्स बन रहे हैं। ट्यूनिका वास्क्युलोसा क्या कैरी करता है? ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एल्बुजिनिया लोब्यूल्स बना रहा है। और लास्ट में ट्यूनिका वेजिनालिस। ये ट्यूनिका वेजिनालिस कहाँ से आया है? पेरिटोनियम से आया है। और आपको पता है पेरिटोनियम कहाँ पर होता है? पेरिटोनियम कवरिंग कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। और हमको याद है कि जब बेबी डेवलप नहीं हुआ है, मतलब जब वो अर्ली फीटल लाइफ में है, तो टेस्टिस एब्डोमिन में थे, और जब कोई चीज़ एब्डोमिन में होती है तो वो पेरिटोनियल लेयर से कवर्ड होती है, और जब वो एब्डोमिन से नीचे आए, स्क्रोटम के अंदर आए, तो वो अपने साथ थोड़ा सा पेरिटोनियल लेयर भी लेकर आ गए, और उसी पेरिटोनियल लेयर को हमने लेबल कर दिया ट्यूनिका वेजिनालिस। तो इसका मतलब इससे ये कंफर्म होता है कि अर्ली लाइफ में टेस्टिस एब्डोमिन में होते हैं, और जब चाइल्ड रेडी हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो वो एब्डोमिन से बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। सो ट्यूनिका वेजिनालिस कंफर्म्स that the testis is developed first in abdomen and then in the scrotum. Okay, all right. Okay, so fibers from tunica albuginea divide each testis into 200 to 300 lobules, each with 1 to 4 highly coiled seminiferous tubule. What is this seminiferous tubule? See, These are your seminiferous tubules. ये एक लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा. These highly coiled tube like structures, 3 to 4 layers are present and those are known as seminiferous tubule. एक लोब्यूल के अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं seminiferous tubule. What is the function of this seminiferous tubule? Each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal germinal epithelial cells, that is spermatogonia. Please read this again. हर एक seminiferous tubule, this is the TS of a seminiferous tubule. ये seminiferous tubule को कट करके transverse section बताया गया है. So seminiferous tubule का अंदर का जो layers है वो layers किससे covered होता है? Germinal epithelial से. किससे covered होता है? Germinal epithelial. ऐसे germinal epithelial cells होते हैं. So each seminiferous tubule is internally lined by germinal epithelial cells, okay, which contains spermatogonia. Spermatogonia means immature sperm, जो एक स्टेज पार करेंगे और फाइनली mature sperm बनेंगे. Spermatogonia means immature sperms, okay, or early sperms. And few large pyramidal cells called Sertoli or sustentacular cells. See, these purple colored cells are your Sertoli cells. क्या function है इनका? Let's see. Okay, I hope that things are getting clear to you. So the germinal epithelial cells undergo spermatogenesis, gametogenesis. Gametogenesis as in formation of sperm, formation of male gamete. So TS के स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा ऐसा रखती हूँ पैराग्राफ कि आपको डायग्राम भी दिखाई दे और आपको थ्योरी भी दिखाई दे. ठीक है? Yes. Okay. So as you can see, okay, these are your germinal epithelial cells. ये आपका germinal epithelial cells है. इनके अंदर छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया हैं. ठीक है? The germinal epithelial cells undergo gametogenesis. ये germinal epithelial cells क्या दिखाएंगे? Gametogenesis दिखाएंगे. What is gametogenesis? Formation of gamete. To form what? To form spermatozoa. क्या बनने के लिए? Spermatozoa बनने के लिए. Spermatozoa means small sperms. Sertoli cells provide nutrition. Please underline this. What is the function of Sertoli cells? They provide nutrition to the developing sperms. ये जब अंदर के छोटे आपको ब्लैक कलर के जो छोटे सेल्स दिख रहे हैं, they are immature sperms, जो डेवलप होके mature sperms बनने वाले हैं. लेकिन उनको डेवलप होने में कौन हेल्प कर रहा है? Sertoli cells. And these cells are very very important. अगर ये सेल्स नहीं रहेंगे तो आपका स्पर्म मैच्योर होगा ही नहीं. ये क्वेश्चन एंट्रेंस क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड्स में पूछा गया है. सो प्लीज मार्क दिस सेंटेंस that Sertoli cells provide nutrition to the developing sperms.
वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सीन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगे। पहले आपका जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो एकदम छोटे छोटे इमेच्योर स्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके, स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट है। धीरे धीरे करके वो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं और वो स्पर्मेटोजोआ आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर अपना हेड अटैच कर लेते हैं। दिस इज द सर्टोली सेल्स एंड दिस इज द स्पर्म। सो सर्टोली सेल्स के पास आपका स्पर्मेटोजोआ अटैच हो जाता है, सारा नरिशमेंट उसको मिलता है और फिर फाइनली वो मैच्योर स्पर्म होकर रिलीज हो जाता है। ओके, लेट्स सी। या द innermost spermatogonial cell that is diploid in nature, primary spermatocyte, secondary spermatocyte. Primary spermatocyte is also diploid in nature, लेकिन primary spermatocyte में meiosis हो जाता है। So then you get haploid secondary spermatocyte. Haploid secondary spermatocyte से आपको spermatids मिलेंगे और ये spermatids सर्टोली सेल से जब सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो you will get finally mature sperms. Okay? The interstitial or Leydig's cell lie in between seminiferous tubules. They secrete the male hormone एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। प्लीज मार्क दिस ऑल्सो। तो इस पैराग्राफ में आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड फंक्शन ऑफ लेडिक्स सेल। लेडिक्स सेल कहाँ होते हैं, डायग्राम देखते हैं एक बार, अब डायग्राम पूरा देखते हैं। सी दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टीएस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का और टेस्टिस का, और ये एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये सारे ब्लैक कलर के जो डॉट हैं, दीज आर योर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। जर्म सेल्स एज इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके, एंड सोमैटिक सेल्स एज इन स्किन सेल्स। सो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है ये क्या होंगे, ये डेवलप होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, मतलब डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो स्पर्मेटिड बनेगा और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, ठीक है। दीज आर सर्टोली सेल्स, ये स्पर्म बंडल जो एक साथ सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और ये मेच्योर स्पर्म्स, ओके, जो कि रिलीज हो जाते हैं। ये है आपका लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये लेडिक सेल का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे प्रोड्यूस व्हाट, दे प्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। आपको तीन चीजें याद रखनी है, सर्टोली सेल्स का फंक्शन, लेडिक सेल का फंक्शन और स्पर्म का डेवलप होने का पाथवे, मतलब स्पर्म कैसे कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनिया, ओके, ये यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट जैसा दिया गया है। सबसे पहले आपके पास है स्पर्मेटोगोनियल सेल, उससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे एरो के वाइज याद रखना है, आपको पूरा फ्लो चार्ट याद रखना है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको मिलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको मिलता है स्पर्म और स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से फिर आपको फाइनली मिलते हैं स्पर्म्स विच आर नथिंग बट योर मेल गैमेट्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस very well, because if you haven't understood this then it's of no use studying further. Okay, let's have a look at this box of do you know. Let me just clear the board first. Okay, let's quickly go through it. Okay, first point, what does it say? Presence of peritoneal covering around the testis is an indication of its abdominal origin. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, ट्यूनिका वैजिनालिस लेयर कहाँ से आई है, पेरिटोनियल से। पेरिटोनियल लेयर कहाँ होती है, एब्डोमिन में। तो टेस्टिस के बाहर जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये एब्डोमिन वाला लेयर है, तो इससे ये कंफर्म होता है, दिस लेयर इंडिकेट्स कि टेस्टिस पहले कहाँ पर था, एब्डोमिन में था। फर्स्ट पॉइंट में हमको ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, द टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड हमारे टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर रखती है। ओके, देन नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट्स द डिसेंड ऑफ टेस्टिस एंड द fibromuscular band called gubernaculum or gubernaculum, whatever you want to pronounce it as,
इन द स्क्रोटम। सो क्या बोला गया है हमको इधर पे, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, दैट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, किसने बनाया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। क्या फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, दिस हार्मोन स्टिम्युलेट्स, मतलब इट स्टार्ट्स और इट हेल्प्स द डिसेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस प्रॉपरली स्क्रोटम में आ जाए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है। अब जिस फीटस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है तो बहुत बार उनके टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, उनके टेस्टिस नीचे आते ही नहीं हैं और फिर उसके वजह से वो मेल स्टेराइल हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म, वी विल रीड अबाउट इट अहेड। सो द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स the descent of testis, it helps in pushing the testis downward, and the fibromuscular band called gubernaculum in the scrotum। ये क्या है, what is this gubernaculum, ये एक छोटा सा बैंड होता है जो टेस्टिस के नीचे प्रेजेंट होता है, जो स्क्रोटम और टेस्टिस को एक साथ जॉइंट रखने में हेल्प करता है। आई विल शो यू। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम जिसके अंदर आपका टेस्टिस होगा, तो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में यहाँ पर ऐसे एक फाइब्रस बैंड होता है, ओके जो स्क्रोटम को और टेस्टिस को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। दिस इज नोन एज गबरनैक्यूलम। ओके, ये जो जितने भी एक्स्ट्रा लेबलिंग्स हैं मेक श्योर कि आप वो अपने डायग्राम में लेबल करते जाएं, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट डन। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट हमने क्या देखा, that the testis was originally in abdomen. Then second point, the testis are suspended in scrotum. Third point, testosterone helps. What is fourth point? In some males, a loop of intestine may pass through the inguinal canal into the scrotum and cause a condition called inguinal hernia. मतलब इसमें क्या होगा कि आपका ये मेल एब्डोमेन है, यहाँ पर जो टेस्टिस हैं, जब ये टेस्टिस नीचे आएंगे इंग्विनल कैनाल से तो हो सकता है कि इंटेस्टाइन का पार्ट भी टेस्टिस के साथ नीचे आ जाए। मतलब यहाँ पर आपके स्क्रोटम में, यहाँ पर स्क्रोटम में टेस्टिस है और टेस्टिस के साथ इंटेस्टाइन का पार्ट भी आ गया है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया, जब टेस्टिस के साथ इंटेस्टाइन का पार्ट भी स्क्रोटम में आ जाता है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज इंग्विनल हर्निया। ओके, ऑलराइट। Now let's start with our next topic, that is accessory ducts. Next sub topic to be clear. पहला हमने देखा टेस्टिस, अब दूसरा हम देख रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स और तीसरा इसके बाद होगा ग्लैंड्स, क्योंकि यही तीन चीजें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, एक्सेसरी डक्ट्स मतलब क्या होते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स आर नथिंग बट विच हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, द एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, कौन कौन से डक्ट्स हैं? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये 5 डक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, सॉरी 6 डक्ट्स। All the seminiferous tubules of the testis at the posterior surface, एक एक करके देखते हैं। all the seminiferous tubules of the testis at the posterior surface form a network of tubule called retetestis। मतलब क्या? ये आपका टेस्टिस था, ये आपका एपिडिडाइमस था, ओके यहाँ पर आपके लोब्यूल्स बने थे। ये लोब्यूल्स के अंदर के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर जमा होते हैं पोस्टीरियर एंड में, पीछे की तरफ, और यहाँ पर क्या बना देते हैं? रेटेटेस्टिस। क्या बना देते हैं? रेटेटेस्टिस। दिस इज रेटेटेस्टिस। ओके, 12 to 20 fine tubules arising from retetestis are vasa efferentia, और इसी रेटेटेस्टिस से जो ट्यूब्यूल जनरेट होगी उस ट्यूब्यूल को हम बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। ओके, और ये वासा इफ्रेंशिया किससे कनेक्ट होगी? एपिडिडाइमिस से। ओके, वासा इफ्रेंशिया का क्या काम है? देखो, ध्यान से देखो। हाँ, ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियल्स के बीच में सर्टोली सेल्स हैं जो स्पर्म्स बना रहे हैं।
तो बेसिकली सारा स्पर्म यहाँ बन रहा है। ये स्पर्म बन के कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस में जाएगा। रेटेटेस्टिस से कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंशिया में। सो वासा इफ्रेंशिया का काम क्या है? दे कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इट इनटू द एपिडिडाइमिस। वापस बोलती हूँ, ये आपका टेस्टिस है, ये लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जमा होकर रेटेटेस्टिस बनाते हैं। रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया निकलता है, मतलब बहुत सारे ट्यूब्स बन के एक ट्यूब बनता है। ये एक ट्यूब स्पर्म कैरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पर्म्स बन चुके हैं, वो सारे स्पर्म्स यहाँ जमा हुए हैं। ये स्पर्म कैरी करके कहाँ लेके जाएगा? एपिडिडाइमिस के पास लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? एपिडिडाइमिस के पास। इट इज अ लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। Upper part is known as head or capute, upper capute, okay? Upper part is known as upper capute, middle part is known as middle corpus and the lower part is known as chorda epididymis। ये तीनों नाम आपको याद होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है? एपिडिडाइमिस 3 रीजन में डिवाइडेड है, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, ओके? मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी ऊपर जो दिया है हमको, पहले थ्योरी पूरा देख लेते हैं। द स्पर्म्स अंडरगो मैचुरेशन इन एपिडिडाइमिस। आधा मैचुरेशन उनका यही हो गया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स के पास, और जो बचा कुचा मैचुरेशन है वो कहाँ पर होगा? एपिडिडाइमिस के पास होगा। सो द स्पर्म्स अंडरगो मैचुरेशन इन एपिडिडाइमिस। पोस्टीरियरली इट लीड्स इनटू वास डिफरेंस। ये एपिडिडाइमिस किससे कनेक्टेड है? वास डिफरेंस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? वास डिफरेंस से। which travels up to the abdominal cavity and loops over the ureter। यहाँ पर आपका यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पर आपका यूरेटर जा रहा है, ठीक है? यूरेटर के बाजू से ये ऐसे ट्विस्ट होके, मतलब समझो ये यूरेटर है और ये आपका वास डिफरेंस है, तो ये वास डिफरेंस से घूम के लूप बना के नीचे आता है, ठीक है? सो पोस्टीरियरली आपका एपिडिडाइमिस क्या बन रहा है? वास डिफरेंस बन रहा है। दिस वास डिफरेंस ट्रैवल्स अप टू द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी तक जाएगा, मतलब ऊपर तक आएगा क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर ऊपर है, बॉडी के अंदर है, टेस्टिस बॉडी के बाहर है। सो द वास डिफरेंस विल कैरी द स्पर्म्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और वो यूरेटर के बाजू से लूप बना के ट्विस्ट होके इट विल रीच द यूरेटर टू ओपन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेटर से ऐसे बाजू से लूप बना के वो यूरेथ्रा में एंटर करेंगे। कहाँ एंटर करेंगे? यूरेथ्रा में। ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर था इसके आगे यूरेथ्रा बनता है, ठीक है? अब यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास होती है और यूरिन भी पास होती है, इसीलिए हम यूरेथ्रा को दोनों फंक्शन बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल। यूरिनो इसलिए क्योंकि वो यूरिन कैरी कर रहा है, और जेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि वो गैमेट्स कैरी कर रहा है, क्योंकि स्पर्म वहीं से जाने वाले हैं, ओके? सो बिफोर डूइंग सो, पर पहले स्पर्म छोड़ने से पहले, बिफोर डूइंग सो इट जॉइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। एक बार आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ओके? सी, जस्ट क्विकली हैव अ लुक। ये आपके लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन रहा है, हमने टीएस देखा। ये सारे स्पर्म्स जमा होके कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर जमा हो रहे हैं पोस्टीरियर एंड में, रेटेटेस्टिस बना रहे हैं। रेटेटेस्टिस से सारे ट्यूब्स इकट्ठा होकर एक ट्यूब बनाते हैं, ये वाली, दैट इज वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया किससे कनेक्टेड है? एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड है। एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी एंड टेल, दैट इज कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ये एपिडिडाइमिस क्या बनाता है? आगे जाके वास डिफरेंस बनाता है। ये वास डिफरेंस क्या करेगी? वास डिफरेंस ऊपर जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी में। उसके अंदर स्पर्म्स हैं। वास डिफरेंस के अंदर क्या है? ये आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में, अब वो बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। एब्डोमिनल कैविटी में गया ये स्पर्म, ये आपका यूरेटर है। दिस येलो पाइप इज योर यूरेटर, जो यूरिन कैरी कर रहा है। तो देखो कैसे इसने पीछे से ऐसे लूप बना लिया, आपका वास डिफरेंस लूप बना के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन अब वो यूरेथ्रा के पास जाने से पहले सेमिनल वेसिकल को अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है? सेमिनल वेसिकल। वेसिकल यानी कि एक वेसल जो कोई लिक्विड जमा करे। सेमिनल यानी कि सीमन। सीमन इज अ लिक्विड विच कंटेन्स स्पर्म।
मेल्स की बॉडी में जो सीमेन प्रोड्यूस होता है उसमें स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड कहाँ पर स्टोर होता है? इन वेसिकल्स में, ओके। सो यहाँ से जो स्पर्म आए हैं वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर होंगे। सेमिनल वेसिकल में स्टोर होने के बाद वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड से वो ढेर सारा फ्रुक्टोज और ढेर सारे हार्मोन्स लेंगे और बहुत सारी एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी लेके फिर वो कॉपर्स ग्लैंड के पास आएंगे और कॉपर्स ग्लैंड के पास से उसका भी प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर वो एंटर करेंगे यूरेथ्रा में। मतलब स्पर्म खाली हाथ नहीं आएंगे, वो सारी एनर्जी लेते हुए यूरेथ्रा में आएंगे ताकि जब सीमेन बाहर निकले तो स्पर्म एनर्जाइज्ड हो, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लो। तो अब मैं थ्योरी दिखा देती हूँ, बार बार वापस डायग्राम में नहीं आएंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। Yes, so where were we? Yeah. Before doing so, it joins the duct of seminal vesicle to form ejaculatory duct. आपका वास डिफरेंस किससे ज्वाइन हो जाएगा? ये वास डिफरेंस यहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो है ऐसे सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? इजैकुलेटरी डक्ट। द इजैकुलेटरी डक्ट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इजैकुलेटरी डक्ट किसके थ्रू पास होगी? यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इजैकुलेटरी डक्ट्स उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पास होंगी एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। ये दोनों मिलके यूरेथ्रा के अंदर ओपन होंगी। लेकिन यूरेथ्रा के बाजू बाजू में क्या है? द यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, वहाँ से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होगा, मतलब सीमेन भी पास होंगे। इसीलिए यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इट कैरीज यूरिन एंड इट कैरीज स्पर्म। बट बिफोर दैट इन मेल्स द यूरेथ्रा इज लॉन्ग, ओके। हाँ, बिफोर दैट यहाँ पर बताया नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि वो यूरेथ्रा में एंटर करने से पहले कॉपर्स ग्लैंड के साथ अटैच होता है। आपका जो डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में आया, प्रोस्टेट ग्लैंड से कॉपर्स ग्लैंड और फिर कॉपर्स ग्लैंड के बाद वो यूरेथ्रा में जाता है। सो इन मेल्स द यूरेथ्रा इज लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस। दिस इज द penis and this is the urethra, okay. So in males the urethra is very long, okay. ये inner layer this is very long. ये यूरेथ्रा बहुत लंबा होता है क्योंकि इसको यूरिन भी कैरी करना है और सीमेन भी कैरी करना है। देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर रिलीज ऑफ यूरिन और फॉर रिलीज ऑफ सीमेन। सीमेन और यूरिन दोनों एक ही ओपनिंग से बाहर जाने वाला है, ठीक है। इट ओपन्स टू द आउटसाइड बाय एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस। इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम? यूरेथ्रल मियाटस और मीटस और यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑल द एक्सेसरी डक्ट्स एक्सेप्ट यूरेथ्रा आर प्रेजेंट इन पेयर्स। सारी डक्ट्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, सारी की सारी चीज़ें दो दो हैं, सिर्फ आपका यूरेथ्रा सिंगल है। ओनली दिस मिडल यूरेथ्रा इज सिंगल ट्यूब प्रेजेंट, ओके, बिटवीन द मेल पेन्स। सो दिस वॉज अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड्स. Now this was about accessory duct. So this was about the accessory ducts. I hope that you understood the lecture very well, okay. And now we will cover the next topic in our next session. So I hope that today's lecture was very much clear to you, and we will be covering the entire remaining topic of the male reproductive system in our next session, and we will try to finish the topic in the next session itself, ताकि 2 सेशन में आपका आराम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको रिविजन के टाइम पे क्विकली फटाफट रिवाइज हो जाए. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to go quickly and give detailed explanation about the topic, okay. And if you still have any query or if you still find it difficult to understand any particular concept, then please feel free to ask your doubts in our comment section. And if you liked the explanation, if you are liking our videos, then please click on the like button. Do not forget to comment your experience and share it with your friends. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please subscribe it. Thank you. See you soon.